students, how are you? I hope you're very well and in these stressful times are taking proper care of yourself and doing all the necessary things which are required and which are formulated by the government. We require to be well aware of the things around us, but in these times of social distancing, we cannot let it come between us and our books, right? So we need to let our studies go on, and so here I am. We are going to learn the subject biology together. My name is Rekha Singh, and obviously many of you think biology is a very interesting subject. Many of you think otherwise also. But what I want to convey is biology is the study of life. And how can life be boring at all? Or how can life not fascinate anybody, right? So biology is a subject which is quite simple, and as we move on, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आएगा कि बायोलॉजी एक बहुत सिंपल सब्जेक्ट है. हम धीरे धीरे उसके कॉन्सेप्ट समझेंगे और we will move along, right? So whatever difficulties we face, we will be discussing it. So do not take it as a difficult subject or as a boring subject या रटने वाला subject, जो भी नहीं. ये तो सब कुछ समझने वाला ही है, क्योंकि ये तो स्टडी ऑफ लाइफ है और लाइफ तो हमारे सारी तरफ है. हम खुद लिविंग ऑर्गेनिजम्स है. हमारे आसपास कितनी सारी चीजें जो हम रोज देखते हैं, राइट? तो वो कैसे डिफिकल्ट हो सकती है, ठीक है ना? सो बी एट ईज एंड टेक योर रजिस्टर्स एंड योर पेन्स and just let us move forward as I take you through the journey of the first chapter in the 9th class, right? Which is cell, the fundamental unit of life. See, we are starting with the fundamental unit of life. So let's see what all unfolds as we move forward in the chapter. And as I say, it is very simple. So relax. Just try to understand. We'll move from simple things slowly to little more things which seem complicated but are not. So do not worry. Come on, let us start our first chapter, that is cell, the fundamental unit of life. ठीक है, तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि सेल क्या होता है, सेल के अंदर की चीजें क्या है, उसकी डिस्कवरी कैसे हुई, कैसे उसको देखा गया. ये सारी चीजें हम धीरे धीरे पढ़ेंगे और हमें बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा कि कैसे एक छोटी सी चीज जो हमें दिखाई भी नहीं दे रही है, जो हमारे आसपास हर चीज में मौजूद है. ठीक है, तो एनीथिंग विच वी सी, for example, if we take a small piece of a skin, it is made up of so many cells. हमें दिखता भी नहीं है, लेकिन हर living thing basically एक very minute चीज से बनी हुई है, that is the cell. So come on, let us see how the cells were first discovered. आप जानते हैं before 1665 लोगों को ये नॉलेज ही नहीं था कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बना हुआ. इनफैक्ट सेल के बारे में कोई कुछ भी जानता ही नहीं था. लेकिन सबसे पहले एक इंग्लैंड में एक साइंटिस्ट थे जो केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी सबसे उन्होंने डील किया. ही वाज अ जीनियस इनफैक्ट, रॉबर्ट हुक. और उन्होंने सबसे पहली बार सेल को ऑब्जर्व किया. एक्चुअली ही वाज अ पर्सन हु वाज वेरी इंटरेस्टेड इन सीइंग माइन्यूट डिटेल्स, है ना? तो छोटी छोटी चीजों को देखने को उनको बहुत इंटरेस्ट आता था. वो कभी फ्लीस के या फ्लाइज अपन कह सकते हैं, उनके डायग्राम्स बनाए उन्होंने. ही वाज अ गुड painter also, so he could draw very well. He was interested in various things, right? And he would work on everything. तो सेल की डिस्कवरी का क्रेडिट हम रॉबर्ट हुक को ही देते हैं. रॉबर्ट हुक इन द ईयर 1665 उन्होंने सबसे पहले एक सेल को ऑब्जर्व किया, और ये जो टर्म है ना सेल, वो भी उन्होंने ही कॉइन किया. सो द डिस्कवरी ऑफ सेल वाज डन बाय रॉबर्ट हुक in the year 1665.
1665. So the first cell was discovered by Robert Hooke. Who discovered the first cell? Robert Hooke. He was from England, and he was the discoverer of the first cell. But ये जो फर्स्ट सेल था, it was a dead cell. Actually उन्होंने क्या किया, जब वो एक बार्क ऑफ ट्री में से कॉक का स्लाइस स्टडी कर रहे थे, ठीक है ना, तो उनको ऐसे हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आए, समथिंग लाइक दिस, समथिंग ही सॉ लाइक दिस, एंड उनको लगा कि अरे ये जो चीजें हैं ये तो काफी छोटे छोटे रूम्स की तरह है जिसमें मॉन्क्स रहते हैं, और उनको सेल्स बोलते हैं. सो ही कंपेयर्ड इट विद दैट, एंड फ्रॉम दैट थॉट ओनली द वर्ड सेल अरोज. ठीक है, तो ऐसे स्ट्रक्चर्स जब उन्होंने देखे इन अ piece of a dead plant tissue, he observed and called them cell. So this was actually प्लांट सेल ही होगा ना, एक कॉक में ऑब्जर्व किया था फ्रॉम द बार्क ऑफ अ ट्री, सो ऑब्वियसली इट वाज अ प्लांट सेल. सो डिस्कवरी जो हुई थी वो पहला डेड सेल था जो रॉबर्ट हुक ने ऑब्जर्व किया था अंडर द माइक्रोस्कोप, एंड इट वाज अ अमेजिंग फैक्ट कि सभी लोगों को इसके बारे में पहले कुछ पता ही नहीं था. अब ऑब्वियसली जब उन्होंने 1665 में ये ऑब्जर्व किया होगा तो ऐसे ही तो दिखा नहीं, वरना तो हम ही देख रहे थे, हमें तो कुछ सेल्स नजर आते नहीं है, तो ऑब्वियसली उनके पास कोई ऐसी चीज रही होगी ना जिससे उन्होंने उस सेल को ऑब्जर्व किया. ठीक है, तो दैट इंस्ट्रूमेंट हम भी जानते हैं उसके बारे में, कईयों ने आपकी स्कूल्स में देखा भी होगा, राइट, यू ऑब्जर्व इन योर स्कूल्स द माइक्रोस्कोप. सो रॉबर्ट हुक ऑल्सो studied the cell with the help of a microscope. ठीक है, एक्चुअली माइक्रोस्कोप्स क्या होते हैं अपन थोड़ा सा उसके बारे में भी जान लेते हैं. He observed what is a microscope, an instrument which magnifies images, small things, right? तो ऑब्वियसली उन्होंने एक माइक्रोस्कोप में देखा, तभी उनको ये सेल्स नजर आए, और उन्होंने ये माइक्रोस्कोप के बारे में अपन थोड़ी बात करें तो एक्चुअली इसकी डिस्कवरी 1590 तक जाती है. एक्सक्यूज मी, 1590 में देवर टू फादर एंड सन, देवर टू साइंटिस्ट वी कैन से, और टू स्पेक्टिकल मेकर्स. एक्चुअली स्पेक्टिकल्स आप जानते हैं जो हम वेयर करते हैं, they were two people who were working, one was the father and one was the son. उनका नाम था Zacharias Jensen and F. Jensen. So we can say Jensen and Jensen. वो दोनों काम कर रहे थे, और उन्होंने क्या किया, दो तीन लेंसेज लगा के उन्होंने ये देखा कि एक लेंस के बनिस्बत जब दो लेंसेज साथ में रखी जाती है तो चीजों को बेटर मैग्नीफाई किया जाता है. ठीक है ना, तो दे बिल्ड टाइप ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप. अब मैंने वर्ड यूज किया कंपाउंड माइक्रोस्कोप, समवे यू कम अक्रॉस द वर्ड सिंपल माइक्रोस्कोप. तो पहले हम देख रहे थे माइक्रोस्कोप्स टू टाइप के होते हैं, एक तो होता है सिंपल माइक्रोस्कोप, एक होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप. ये जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है ना, ये जेंसन एंड जेंसन ने डिजाइन किया था 1590 में. लेकिन हमारे रॉबर्ट हुक, उन्होंने जो देखा, उन्होंने एक सिंपल माइक्रोस्कोप के थ्रू इस सेल को देखा था. नाउ आई यूज द वर्ड सिंपल माइक्रोस्कोप. डिफरेंस बस इतना ही है कि सिंपल माइक्रोस्कोप में एक लेंस यूज होती है और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ज्यादा दो लेंसेज होती है टू मैग्नीफाई थिंग्स, राइट. The ones which we use in our schools, the light microscope, right? It is the compound microscope. But रॉबर्ट हुक ने ये देखा कि जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है इसके कंपैरिजन से अब जब सिंपल से करते हैं तो सिंपल में उनको चीजें बेटर नजर आ रही थी. सो रॉबर्ट हुक यूज्ड अ सिंपल माइक्रोस्कोप.
compound microscope was discovered earlier. So in 1590s began the starting of observation of things which were very minute. उसके बाद कई लोगों ने और डिस्कवरीज करते गए एंड अब हम वापस आते हैं टू सी व्हाट रॉबर्ट हुक डिड. ही ऑल्सो डिस्कवर्ड a simple microscope, I can say. Simple microscope रॉबर्ट हुक ने भी डिजाइन किया. उसमें उनको बेहतर नजर आया कि जो चीजें वो देखना चाह रहे थे वो ज्यादा मैग्नीफाई हो रही थी, तो ही यूज्ड अ सिंपल माइक्रोस्कोप. सो फ्रॉम दिस वी कैन conclude that Robert Hooke, an Englishman, was the first person who discovered the cells. He obviously wanted to magnify things, right? And magnify and see them. He was very interested in minute things. So he discovered the first cell. It was a dead plant cell. ठीक है. और जब अपन आगे देखेंगे ना, जब अपन सेल वॉल के बारे में जानेंगे तो अपन यही जानेंगे कि रॉबर्ट हुक को एक्चुअली जो नजर आई थी वो सिर्फ सेल वॉल्स थी, नथिंग एल्स. ठीक है. बट इनिशियली इतना ही बहुत था. Discovered a simple microscope. He named, or I can say coined, कई बार ये वर्ड आ जाता है, coined the term cell for the minute structures which he observed. वैसे इन्होंने बहुत सारे स्ट्रक्चर्स देखे थे और अपनी हर चीज जो इन्होंने देखी उसका एक ड्राइंग बनाया था, एक पिक्चर बनाया था और उसको रिप्रेजेंट किया था या रखा था, या फर्स्ट टाइम उसको ड्रॉ करके कलेक्शन के फॉर्म में पेश किया इन अ बुक कॉल्ड माइक्रोग्राफिया. सो in his book, which is Micrographia, right? So रॉबर्ट हुक हमने अभी देख लिया. रॉबर्ट हुक ने पहला सेल डिस्कवर किया था 1665. इससे पहले लोगों को नहीं पता था कि कोई सेल जैसी चीज भी होती है. उन्होंने एक सिंपल माइक्रोस्कोप से इसको देखा था in a tissue, and he had seen actually the cell walls of a plant. उनको अंदर का कोई भी स्ट्रक्चर नजर नहीं आया. तो हम जैसे जैसे आगे जाएंगे ना तो हम देखेंगे कि सेल के अंदर भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स है, लेकिन अभी तक 1665 में रॉबर्ट हुक को ऐसा कोई भी डिटेल पता नहीं चला था. उनको तो सिर्फ बाहर की वॉल्स दिखी थी. ठीक है. तो he discovered it and wrote about it in his book which is Micrographia. ये चैप्टर कई इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंस रखता है ना. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड द ईयर्स, द नेम्स ऑफ द साइंटिस्ट, द नेम्स ऑफ द बुक्स एक्सेट्रा, दे कम ऑन एंड ऑन इन एवरी एग्जाम. एनटीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आप जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जा रहे हैं आप नोट डाउन जरूर करते रहें. ठीक है. कर ही रहे होंगे, आई नो दैट. ठीक है. सो हमने पढ़ा एक साइंटिस्ट के बारे में जिनका नाम है रॉबर्ट हुक. इन द ईयर 1665 he discovered the first cell, but it was a dead plant cell. ठीक है. उन्होंने सिंपल माइक्रोस्कोप का भी इन्वेंशन किया एंड ही कॉइन्ड द टर्म सेल. एक्चुअली ये जो वर्ड है ना सेल, किससे आया? इट इज फ्रॉम अ वर्ड सेल्यूले. Cellulae means a small room, and from that only the word cell was derived. He wrote a book, or I should say he drew or he illustrated all the examples in a book called Micrographia.
माइक्रोग्राफिया, और उसी वहीं से लोगों को पता चला कि सेल जैसी कोई चीज, ये माइक्रोग्राफिया है ना, ये बुक बहुत बिकी थी. इट वॉज it spread like people were so inquisitive, they wanted to read what was written and wanted to know about minute things. तो उससे सबको पता चला कि छोटी छोटी चीजें हर स्ट्रक्चर में होती हैं, small things which are called cells. So I can say basically all living organisms are made up of cell. ये later on आया था वैसे, लेकिन हम जानते हैं ना, क्योंकि हम हमारे से तो बहुत पहले हुए थे रॉबर्ट हुक. तो रॉबर्ट हुक को तो इतना ही पता चला था कि उन्होंने ऐसे स्ट्रक्चर्स देखे थे जो एक्चुअली सेल वॉल्स थी ऑफ डेड प्लांट सेल. फिर भी हमने एक बहुत 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 इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी के बारे में जान लिया. ही गेव अस अ लाइट, ही शोड अस अ वे कि ऐसी चीजें होती है. आज जो हम इतना चीजें जानते हैं, डिफरेंट डिफरेंट दवाइयाँ आती है, हर चीज आफ्टर इसकी डिस्कवरी के बाद ही तो आई होंगी, राइट? सो वी हैव टू रिमेंबर व्हाट द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, ईयर, name of the book, and what was it, a plant cell or a dead cell or a living cell. ठीक है, तो ये आपको ध्यान करना है. I hope you understand. ठीक है. अब रॉबर्ट हुक ने ये डिस्कवरी कर ली. उसके बाद there were, like in the same time when Robert Hooke was living, there was another scientist who was actually a Dutch person. वो हॉलैंड से था. और I shouldn't be saying actually a scientist, because ये जो person था, he was not belonging, he did not even have higher education. He was just very very curious about things and he wanted to gather as much knowledge as he could. उनके पास ना तो डिग्रीज थी हायर, वो तो एक बिजनेसमैन फैमिली को बिलोंग करते थे, और एक लेटर ऑन एक ड्रेपर, एक फैब्रिक मर्चेंट जो होता है ना, उस हिसाब से काम कर रहे थे. फिर भी बिकॉज उनकी क्वेस्ट फॉर नॉलेज वाज सो मच, ही मेड वेरियस डिस्कवरीज विच वर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर साइंस टू मूव फॉरवर्ड. ठीक है, उनके बारे में हम पढ़ते हैं. वो थे एंटोन वॉन लीवनहुक. ठीक है, और इनफैक्ट हायर डिग्रीज की बात करें तो उनके पास वो तो नहीं थी, बट उनको अपनी नेटिव लैंग्वेज डच के अलावा ज्यादा लैंग्वेजेस का भी नॉलेज नहीं था. बट फिर भी सी, व्हेन यू हैव द क्वेस्ट फॉर नॉलेज, आप कहाँ से कहाँ जा सकते हैं, राइट? सो लेट अस नाउ सी, रॉबर्ट हुक ने डेड सेल डिस्कवर कर लिया, लेकिन जो फर्स्ट लिविंग सेल था वो किसने डिस्कवर किया, राइट? सो नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट एंटोन वॉन लीवनहुक, अ डच person who discovered the first living cell. ठीक है, so I wrote this out. Hope you've noted it down. And see, thanks to technology, if you haven't, you can just pause it and just note it down in your book. लिखना बहुत जरूरी है बच्चों. Always एक चीज ध्यान रखो, हम जब सुन रहे हैं कुछ चीज, हम कोई चीज देख रहे हैं, हमारे दो सेंसेस वर्क कर रहे हैं, लेकिन हम जब लिखते हैं ना तो हमारा माइंड और भी बेटर वर्क करता है, बिकॉज मूवमेंट ऑलवेज इंक्रीजेस द फ्लो ऑफ ब्लड, राइट? सो जस्ट कीप ऑन राइटिंग, योर हैंड ऑल्सो इन कोऑर्डिनेशन, यू रिमेंबर बेटर. ठीक है, सो राइटिंग इज अ वेरी गुड मेथड टू रिमेंबर थिंग्स. ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अबाउट सर एंटोन वॉन और आई कैन से AV. कई बुक्स में V भी यूज कर लेते हैं. ठीक है, सम राइट WAN, WEN. It's okay. You have to know the name which matters. So sir, AV लीवनहुक. हम जब A लिख रहे हैं तो इसको A ही लिखेंगे. So Anton von Leeuwenhoek was the person who discovered the first living cell. In the year 1674. Actually, ये लीवनहुक जो थे, ये बहुत इंटरेस्टेड थे in knowing about things, and
ही इज ऑल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी. फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी तो है ही वॉज वेरी मच लाइक इंटरेस्टेड इन मैग्नीफाइंग थिंग्स, राइट. तो इन्होंने ऑलमोस्ट 500 से ज्यादा लेंसेज को ग्राइंड करके चीजों को मैग्नीफाई करना सीखा था. एक्चुअली इनका इंस्पिरेशन हो सकता है रॉबर्ट हुक ही थे. ही हैड ऑलरेडी सीन द सेल इन ऑल दैट, बट इन्होंने क्या किया, he built a simple microscope which was better than the one of Robert Hooke. तो उस माइक्रोस्कोप से उन्होंने चीजों को ऑलमोस्ट 200 टाइम्स मैग्नीफाई कर दिया. तो इसीलिए उनको समटाइम्स रिफर किया जाता है द फाउंडर ऑफ माइक्रोस्कोप्स एंड ऑल दैट. इन्होंने क्या किया, पॉन्ड वाटर जो होता है, जो गंदा पानी, जो हमें ऐसे नजर नहीं आती चीजें उनमें, लेकिन पॉन्ड वाटर के अंदर कई लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं. और उन्होंने उसके अंदर ऑब्जर्व किया कि छोटे छोटे स्मॉल एनिमल्स कह सकते हैं हम, या एनिमल, छोटे छोटे स्मॉल ऑर्गेनिजम्स है जो मूव कर रहे हैं, और वो कुछ एक सेल्स की तरह ही नजर आए. तो उन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल को डिस्कवर किया. उन्होंने जब वो जा रहे थे ना, तो स्पाइरोगाइरा का भी बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया था. स्पाइरोगाइरा क्या होता है, एक एल्गी होता है, ठीक है ना. आप 8th में पढ़ चुके होंगे अबाउट द 5 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, राइट. वायरस, एल्गी, फंगस, बैक्टीरिया एंड प्रोटोजुआ, राइट. तो इनके बारे में, तो एल्गी के बारे में भी उन्होंने एक डिस्क्रिप्शन किया था आफ्टर ऑब्जर्विंग इट. तो उन्होंने बैक्टीरिया को भी डिस्कवर किया. लेटर ऑन बहुत सारे प्रोटिस्ट को देखा, बहुत सारी चीजों को, छोटी छोटी माइन्यूट चीजों को देख के आगे बढ़ते गए. और लेकिन पहला जो लिविंग सेल था वो इन्होंने ही देखा था in year 1675. He is also called father of microbiology and microscopy. Okay? And he had constructed a simple microscope which was quite had a very good quality and a very good resolution. He could magnify things more than the other microscopes. ठीक है, तो इनको और भी अच्छी चीजें जैसे ब्लड सेल्स इन द ब्लड, वो भी इन्होंने देखे थे. इन्होंने कई चीजें देखी. सो ही हैज द, इसीलिए इनको कई बार सर एंटोन वॉन लीवनहुक भी बोलते हैं. ठीक है. सो ही डिस्कवर्ड द फर्स्ट लिविंग सेल एंड इज कॉल्ड द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी. ही ऑल्सो discovered many things. A simple microscope, which was one of them, which was better than the Robert Hooke one. ठीक है. तो ये दो साइंटिस्ट थे जिनका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है इन द डिस्कवरी ऑफ द सेल. ठीक है. इन्होंने तो ये डिस्कवर कर लिया था, लेकिन लेटर ऑन till 1838 and 1839 ये अभी तक एस्टैब्लिश नहीं हुआ था कि all living things are made up of cells or not, and there were many confusions. Lot of scientists were going on working on these. ठीक है. तो इनकी डिस्कवरीज तो थी, they were the basis of every discovery, लेकिन कई चीजें अभी तक भी लोगों को पता नहीं था. ठीक है. तो they went, discoveries went on, scientists went on study, and in 1838 and 39 I can say, there were two scientists who were called, who were named actually I should say, Schleiden and the other one was Kohn. So there were two, ये तो आपने सबने नोट कर लिया होगा, who discovered the first plant cell, dead cell. अब क्वेश्चन में ये भी आ सकता है, ये ध्यान देना है अपन को. देखो NTSC जब आप टारगेट करेंगे ना, तो इट इज अ मल्टीपल चॉइस एग्जाम क्वेश्चंस आते हैं उस एग्जामिनेशन में, और वो नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन है. तो आपको उसके लिए अच्छी तरह से प्रिपेयर करना चाहिए. आप 10th में आएंगे तो और उसका नॉलेज बढ़ेगा, लेकिन आपको ये ध्यान में देना है कि उस एग्जाम में होती तो 10th क्लास में है, लेकिन 9th क्लास का भी बहुत सारा पार्ट उसमें आता है. तो हम अभी से ही अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो हमें बहुत हेल्प होगी, राइट. तो 9th का ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी में से हमने थोड़ा छोटा सा पार्ट पढ़ा, इसी में से बहुत सारी चीजें आ जाती है, जैसे कौन से ईयर में सेल डिस्कवर हुआ था, कौन किसने किया था. अब आपको ये ध्यान रखना है, जैसे एवी लीवनहुक ने तो पहला लिविंग सेल डिस्कवर किया, तो आप उस क्वेश्चन पे ध्यान दें. अगर फर्स्ट सेल
वॉज डिस्कवर्ड बाय डैश आए तो आप रॉबर्ट हुक ही लिखेंगे, लेकिन फर्स्ट लिविंग सेल आ जाए तो आप एबी लीवनोक लिखेंगे। ठीक है, छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना बहुत जरूरी। ओके, अब ये सब होने के बाद एज आई वॉज टॉकिंग अबाउट श्क्लीडन एंड स्वॉन, इन्होंने क्या किया वो अपन देखते हैं। इन्होंने सेल थियोरी को प्रपोज किया। एक्चुअली क्या है सेल थियोरी? कुछ पॉइंट्स है जो सेल्स के बारे में लिखे हुए हैं कि सेल क्या होता है, सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है या नहीं, सेल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ है या नहीं, एवरीथिंग इन अ प्रिसाइज एंड पर्टिकुलर मैनर, अच्छी तरह से एक थियोरी बनाई गई। सेल डॉक्ट्राइन भी कई बार इसको बोल देते हैं सेल थियोरी। उन्होंने कुछ पॉइंट्स प्रपोज किए जिसको हम जानना चाहते हैं कि क्या था वो, तो लेट अस स्टडी अबाउट दैट। was given by, ये दोनों जर्मन थे, स्क्लीडन एंड श्वॉन। इन्होंने 1838 में कुछ पॉइंट्स लिखे थे, श्वॉन इन 1839, एंड देन कलेक्टिवली द सेल थियोरी वाज प्रपोज्ड बाय देयर वर्क। ये दोनों जर्मन थे। ये था बॉटनिस्ट। आप जानते हैं बॉटनिस्ट क्या होता है? जो प्लांट्स के बारे में स्टडी करता है। और ये थे जूलॉजिस्ट। जूलॉजिस्ट क्या होते हैं? जो एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो एक बार ये दोनों एक्सक्यूज मी साथ में बैठे थे। स्क्लीडन ने कुछ पॉइंट्स लिखे कि मैंने एक्सक्यूज मी प्लांट्स को ऑब्जर्व किया, उसमें कई सेल्स होते हैं। तो श्वॉन को वो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि वे एनिमल्स में जो मेरी फाइंडिंग्स है वो भी कुछ इससे मैच कर रही है। तो दोनों ने मिलके फिर प्रपोज की सेल थियोरी। मथायस स्क्लीडन एंड थियोडोर श्वॉन, हमें पूरे नाम जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि जहां पे भी क्वेश्चन आता है हु प्रपोज्ड द सेल थियोरी, हु गेव द सेल थियोरी, हमेशा स्क्लीडन एंड श्वॉन ही नाम आते हैं। ठीक है, सो स्क्लीडन एंड श्वॉन सेल थियोरी प्रपोज की, और उस सेल थियोरी में जो बेसिक 2 पॉइंट्स है जो हमें जानने हैं वो है 1, सेल इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, और सेकंड था ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, या मैं यहां पे ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स भी लिख सकती हूं। ठीक है, सो ये 2 बेसिक पॉइंट्स है जो इन्होंने दिए थे, और भी कुछ थे लेकिन हमें इन 2 को ज्यादा ध्यान में रखना है। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ एंड ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, या यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जगह कई बार प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स भी लिख सकते हैं, बट बेटर है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। तो ये बेसिक पॉइंट्स थे ऑफ द सेल थियोरी। अब इनके बाद ठीक है, सबने एक्सेप्ट किया कि हाँ कुछ एक कंफ्यूजन भी रहे, कुछ पॉइंट रॉन्ग भी लगे, लेकिन ठीक है सबने एक्सेप्ट किया कि अरे वाह सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी सेल से बने हुए हैं और बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ ही सेल है, सेल के बिना लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो सब एवरीबडी वाज वेरी हैप्पी टू नो अबाउट दीज डिस्कवरीज। लेटर ऑन कुछ साल बाद देयर वाज अ जर्मन फिजिशियन आप जानते हैं डॉक्टर जो होते हैं, जो फिजिशियन थे उनका नाम था रुडोल्फ विर्शो। रुडोल्फ विर्शो कुछ डिजीजेस के पे स्टडी कर रहे थे और वहां पे उनको पता चला कि सेल जो है अपने आप कभी भी आता नहीं है। सेल रिक्वायर्स प्री एग्जिस्टिंग सेल्स टू कम, मतलब सेल अगर आता है तो वो कहां से आता है? प्री एग्जिस्टिंग वर्ड का मीनिंग क्या होता है? जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है। सो सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो ये भी एक पॉइंट था जो सेल थियोरी में ऐड किया गया था। ठीक है, सो आई कैन से along with Schleiden and Schwann in 1855 Rudolf
विर्शो, ये उनका नाम था, जो एक जर्मन फिजिशियन थे. मॉडिफाइड द सेल थियरी, मॉडिफाइड, or we can say added something more to the cell theory. और इन्होंने क्या किया, the point which he gave was by saying or writing, I can say, omnis cellula e cellula, or you can say cellulae. He said this, इन्होंने ये बोला. अब हमें तो ये समझ में आएगा नहीं कि ये क्या है, ठीक है, बट ओमनी वर्ड हमेशा ऑल के लिए यूज होता है, राइट. आप जानते होंगे, कभी आप प्रे करते हो आपकी स्कूल्स में या कहीं पे भी, तो आपके सामने कई बार ये वर्ड्स आते हैं, गॉड इज ओमनीपोटेंट, गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, गॉड इज ओमनीसिएंट. ओमनीपोटेंट का मतलब ऑल पावरफुल, प्रेजेंट एवरीवेयर. सो दैट ओमनी वर्ड इज फॉर ऑल. तो अगर इसको हम ब्रेक करें, हम जानते हैं सेल्यूला तो सेल के लिए, तो हम क्या सिंपली लिख सकते हैं, ऑल सेल्स फ्रॉम सेल्स. सिंपली हम इसको डिकोड करें तो ये आता है. इससे अगर हम एक सेंटेंस बनाएं तो वो क्या आ जाता है, दैट इज ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम pre-existing cells. आ रहा समझ में आपको? ये पॉइंट किसने दिया था, रूडोल्फ विर्शो ने दिया था. सेल थियरी पहले किसने दी थी, स्क्लीडन एंड श्वान ने. उन्होंने कुछ पॉइंट्स प्रपोज किए थे, वो सबने एक्सेप्ट भी कर लिए थे, लेकिन जब रूडोल्फ विर्शो लेटर ऑन डिजीजेस के बारे में कुछ स्टडी कर रहे थे, तो उनको ये भी समझ में आया कि सारे सेल्स कहाँ से आते हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से. तो फिर ये वाला पॉइंट इस सेल थियरी में ऐड हुआ था, ठीक है. सो क्वेश्चन कई बार आता है, हु प्रपोज्ड द सेल थियरी, तब तो आप क्या लिखते हो, स्क्लीडन एंड श्वान, बिकॉज उन्होंने सेल थियरी प्रपोज की थी या लिखी थी या पॉइंट्स दिए थे. लेकिन हु मॉडिफाइड द सेल थियरी अगर आ जाए तो किस पे आएगा, रूडोल्फ विर्शो पे आएगा, ठीक है. एवरीबडी अंडरस्टैंड्स. और कई बार ये भी पूछ लेते, व्हाट डज ओमनिस, हु गेव ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूले, तब भी आप लिखोगे रूडोल्फ विर्शो. व्हाट डज इट मीन, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. तो इतना आपको समझ में आ रहा है, आई होप यू आर गेटिंग क्लियर, ठीक है ना. थोड़ी चीजें, हमेशा नॉलेज इज ऑलवेज वेलकम. तो हमको जितना जानने को मिलता है ना, हमको जानना चाहिए कि किसने क्या क्या, देखो कैसे डिस्कवरीज हुई है और आज हम कहाँ पे पहुंच चुके हैं, राइट. और आफ्टर रीचिंग सो मच, सी अ सिंपल, एट दिस टाइम हम लोग क्यों ऐसे मिल रहे हैं, एक छोटा सा वायरस है जिसने सभी को परेशान कर लिया. तो अभी मैं आपको बताऊंगी भी कि व्हाट इज दैट वायरस. अभी मैं सेल थियरी के बारे में बात कर रही हूँ ना, मैंने कहा ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. वायरसेस एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एक्सेप्शंस टू द सेल थियरी है. दैट मीन्स वायरसेस डू नॉट फॉलो द सेल थियरी प्रॉपरली, समझे. तो अभी मुझे जो याद आ रहा है, इन दिस टाइम इट इज वेरी रेलेवेंट, आपको याद रखना था, वायरसेस आर exceptions to the cell theory. Okay, why? Because we'll see. I think आपने 8th में पढ़ा होगा वायरसेस क्या होते हैं. वायरसेस कुछ नहीं होते, सिंपल एक प्रोटीन का कोड होता है उनका, और अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, आरएनए या डीएनए. हाँ, ये शब्द आपको थोड़े से डिफिकल्ट लगते हैं या कईयों को ध्यान में आ सकते हैं. यू माइट बी नोइंग द फुल फॉर्म्स और यू माइट बी नोइंग लिटिल मोर अबाउट इट, बट हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, आई विल टेल यू ऑल इन डिटेल कि क्या होता है डीएनए, हाउ, व्हाट इज द स्ट्रक्चर. लेकिन अभी हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो वी शुड ओनली नो दैट वायरसेस आर एक्सेप्शंस टू द सेल थियरी. या हम कह सकते हैं दे आर, आप जानते हो ना, दे आर नॉन लिविंग आउटसाइड द होस्ट बॉडी. जब होस्ट की बॉडी के अंदर जाते हैं तो होस्ट की मशीनरी को यूज करके रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना. तो अभी जो वायरस बड़ा खतरनाक बन रखा है, इट इज एन एक्सेप्शन टू द सेल थियरी. वी कैन नॉट कॉल इट अ
living being. It is a connecting link between the living and the non-living. ये क्वेश्चन भी आता है, what is a connecting link? एक लिंक है दोनों के बीच में, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में. बाहर तो आउटसाइड द होस्ट बॉडी इट इज नॉन लिविंग, होस्ट की बॉडी के अंदर जैसे ही चाहता है, कहते हैं ना आप मास्क रखें, ये क्यों कह रहे हैं अभी, ताकि कोई भी स्नीज करे या कोई भी कफ करे तो उनके मुंह से जो भी ड्रॉपलेट्स आ रहे हैं वो आप तक ना पहुंचे, ताकि वो ट्रांसमिट ना हो सके. वो चल के नहीं जा सकता, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, लेकिन वो उसको अगर पहुंचाया जाए तो वो पहुंच जाता है. ठीक है ना, इसीलिए हमको अपना ध्यान रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, मास्क रखना है. समझ में आ रहा है आपको? तो दिस वायरस इज अ एक्सेप्शन टू द सेल थियोरी. वो सेल थियोरी के पॉइंट्स को फॉलो नहीं करता. लेटर ऑन मैं आपको ये भी बताऊंगी कि सेल्स के 3 बेसिक चीजें क्या होती है. एक ये लैक करता है. ठीक है, अभी हम सेल थियोरी के बारे में बात कर रहे हैं. होप यू अंडरस्टूड इट. और if you have any doubts you can ask me on the WhatsApp group later on. Right now मैं आपको थोड़ा सा बता दूं about what we have studied in this lecture. First we studied about the discovery of cell, then we studied about the discovery of microscope, how it was done, then we studied about Robert Hooke's डिस्कवरीज, उसके बारे में भी अपन ने थोड़ी सी बात की. हमेशा अपन जब एक चीज को पढ़ते हैं ना तो उसके आसपास की चीजें हम जब पता चलती है तो हमें इंटरेस्टिंग लगता है. ठीक है ना, तो थोड़ा बहुत अपन ने रॉबर्ट हुक के बारे में जान लिया, थोड़ा बहुत एवी लीवन हुक के बारे में जान लिया, व्हाट सेल थियोरी के पॉइंट्स क्या थे ये हमने जान लिया. राइट, तो दीज थिंग्स, इतना छोटा सा पोर्शन था लेकिन इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप जरूर याद रखें इनको पॉइंट्स को जो भी मैंने दिया. ठीक है, सो दिस इज अबाउट द सेल थियोरी. अगर आपको कोई पूछे हु डिस्कवर्ड द सिंपल माइक्रोस्कोप तो आप कहोगे रॉबर्ट हुक कह सकते हैं. अ लिटिल एवी लीवन हुक डिस्कवर्ड अ लिटिल बेटर माइक्रोस्कोप कंपेयर टू रॉबर्ट हुक्स माइक्रोस्कोप. लेकिन हु डिस्कवर्ड द कंपाउंड माइक्रोस्कोप. कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैंने बताया था ना आपको डिफरेंस. सिंपल हैज अ सिंगल लेंस, कंपाउंड हैज डबल लेंस. तो इट वॉज जेनसन एंड जेनसन. हाँ, ये नाम किसके जैसा लग रहा है थोड़ा बहुत, जॉनसन एंड जॉनसन. याद रखने के लिए तो अच्छा तरीका है, लेकिन हमको एग्जाम में नहीं लिखना. हमें एग्जाम में क्या लिखना है, जेनसन एंड जेनसन. वैसे ये आपकी NCERT में नहीं है, CBSE के कोर्स में नहीं है, लेकिन इट कैन बी अ क्वेश्चन इन सम ऑफ द ओलंपियाड एग्जामिनेशन. ठीक है, सो दिस इज अबाउट द सेल, अ लिटिल बिट बेसिक अबाउट द सेल. हम आगे आगे जैसे बढ़ेंगे तो हम ये भी समझेंगे कि ये जो हम जिसकी बात कर रहे हैं इसका बेसिक डेफिनेशन क्या है. लाइक मैंने इतना कह दिया कि सेल ऐसे डिस्कवर हुआ था, सेल रॉबर्ट हुक ने किया था, एवी लीवन हुक ने ये काम किया, स्क्लीडन एंड श्वान ने ये काम किया. तो हमें तो क्या करना है, हमें तो एग्जाम में उसका डेफिनेशन लिखना है सेल के. ठीक है ना, तो हम सेल को प्रॉपरली डिफाइन भी कर लेते हैं. सेल, इन सब चीजों की स्टडीज के बाद धीरे धीरे ये पता चला दैट सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. तो आप जब सेल के बारे में, सेल का डेफिनेशन लिखने जाएंगे ना, तो आप क्या लिखोगे, सेल इज बेसिक्स और द सेल इज द स्ट्रक्चरल and functional unit of life. ठीक है, so this is the definition जो आपको पूछ सकते हैं. Cell structural unit, what do we mean by structural unit? हर ऑर्गेनिज्म जो बना हुआ है ना वो सेल से बना हुआ है. तो ऑब्वियसली पूरे स्ट्रक्चर्स तो जो बने, जैसे अपन ह्यूमन बॉडी को भी देखें तो ह्यूमन बॉडी लाइफ कैसे स्टार्ट होती है, एक सिंगल सेल से स्टार्ट होती है, जाइगोट. वो अपन लेटर ऑन कभी बात करेंगे. डिवाइड होके पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है. सेल्स आर द स्ट्रक्चरल यूनिट. उसी स्ट्रक्चर से सारे ऑर्गेनिज्म बने हुए हैं. और बेसिकली फंक्शन, हर फंक्शन जो ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहा है उसका हर सेल वो फंक्शन कर रहा है, तभी मिलके सारे काम हो रहे हैं. ठीक है, सो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. होप दैट मच इज
clear to you? Excuse me. So ये definition आपको याद करना है. Excuse me. Now हमने थोड़ा सा सेल का बैकग्राउंड देख लिया. अब हम इसके आगे देखेंगे कि होता क्या है. बेसिकली इसको स्टडी हम सिर्फ किससे करते हैं, माइक्रोस्कोप से कर सकते हैं. तो हम थोड़ा सा उसके भी पॉइंट्स लिख सकते हैं कि कौन से माइक्रोस्कोप. सिंपल माइक्रोस्कोप रॉबर्ट हुक ने किया, एवी लीवनहुक ने किया, ठीक है. वो उन्होंने सिर्फ ऐसे, रॉबर्ट हुक सॉ ओनली द सेल वॉल्स, ही कुडंट सी द इंटरनल स्ट्रक्चर्स. एवी लीवनहुक थोड़ा सा आगे बढ़े, उनको थोड़ा सा स्ट्रक्चर्स नजर आए. लेकिन आज हम वहां पे पहुंच गए ड्यू टू थैंक्स टू टेक्नोलॉजी कि हमें सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर्स भी पता चल गए. वो कैसे हुआ, वो कैसे पता चला? दैट वाज ऑल अकम्प्लिश्ड बाय द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. और ये डिस्कवरी किसने की? was discovered by Knoll, a scientist named Knoll, and Ruska in 1940s, 1938-40 तक ये काम चलता रहा और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर हो गया. इलेक्ट्रॉन और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या डिफरेंस आ रहा है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आपने स्कूल में भी देखा होगा कि हम लाइट फोकस करते हैं. हमने एक स्टैंड टाइप है, एक आईपीस है माइक्रोस्कोप के ऊपर, वहां से देखते हैं हम. और हमें नीचे स्टैंड के ऊपर हम स्पेसिमेन रखते हैं. स्पेसिमेन क्या होता है? वो चीज जिसको हम ऑब्जर्व करना चाहते हैं, ठीक है, उसको हमने रखा है और उस पर लाइट फोकस करते हैं या फिर उसको इल्यूमिनेट करते हैं. इल्यूमिनेट करने का मतलब क्या होता है? उस पर लाइट डालना, ठीक है. तो जब हम उसको इल्यूमिनेट करते हैं और फिर ऊपर आईपीस से ऑब्जर्व करते हैं तो हमें वो बहुत एनलार्ज्ड फॉर्म में नजर आता है, ठीक है ना. कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हमने देखा होगा, लिखा होता है 10x, 100x. व्हाट डज दैट मीन? 10x मीन्स 10 टाइम्स बड़ा हो जाएगा. 100x 100 टाइम्स उसकी वो जो छोटी सी चीज है 100 टाइम्स बड़ी नजर आएगी आपको, ठीक है ना. तो मैग्निफिकेशन लिखा हुआ होता है. लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ये लाइट की जगह एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज करता है. नॉल एंड रस्का ने क्या देखा कि अगर हम लाइट से इल्यूमिनेट करते हैं तब भी पिक्चर मैग्नीफाई होती है, लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की एक बीम फोकस करके डाली जाए उस स्पेसिमेन के थ्रू तो जो बड़ी सी इमेज आएगी वो सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर्स को भी बता सकती है. सो दैट इज द डिफरेंस एंड दैट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स. उसी से हमको पता चला कि सेल के अंदर भी ये जो छोटी सी चीज जो हमें नजर भी नहीं आ रही, हम देखें तो लीव्स, प्लांट्स, एनिमल्स, एक छोटा सा जो मस्कीटो है या छोटी सी जो एंट है घूमती है, सारे सेल से बनी हुई है. और वो इतने खुद ऑर्गेनिज्म छोटे हैं, कुछ तो वो ही नजर नहीं आते, उनके अंदर सेल्स तो कहाँ से नजर आए. और उन सेल्स के अंदर भी सेल ऑर्गेनल्स है, सोचो. और ये सारे मिलके ऐसा काम कर रहे हैं कि आज हर ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है ना. तो सेल इज अ फैसिनेटिंग यूनिट, एक छोटी सी यूनिट जो मिलके इतना बड़ा काम कर रही है विदाउट इवन बीइंग नोटिसेबल, ठीक है. सो दिस वॉज पॉसिबल विद द डिस्कवरी ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स की इतना फैसिनेटिंग स्ट्रक्चर है अंदर, वो हुआ आफ्टर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. बड़ी सी डिवाइस होती है जो कुछ इंस्टीट्यूशंस में ही होती है, इट्स क्वाइट सोफिस्टिकेटेड. तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बताता है कि सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर्स कैसे है. तो हम जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे ना, अभी तो हमने सिर्फ उसकी डिस्कवरी के बारे में देखा, ठीक है. जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हम ये भी देखेंगे कि सेल के अंदर क्या होता है. अब ये सेल 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 उसकी डिस्कवरी तो हो गया, लेकिन सेल वर्क कैसे करता है, सेल के अंदर क्या होता है, ये सारा कुछ हम पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर जब हम मिलेंगे. और मैं आपको बताऊंगी कि अपन वी विल ट्रैवल इन थ्रू अ सेल, है ना. हम स्टार्ट करेंगे कि भाई चलो हमको पता चला सेल बाहर से कैसा है, ये वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी. इंटरनल अंदर जाते 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 तक हमको क्या चीजें मिल सकती है अगर हम एक सेल के अंदर ट्रैवल करते हैं. हाँ, इमेजिन ही करना है, कर तो नहीं सकते, लेकिन इमेजिन करने में तो क्या बुराई है, ठीक है ना. तो हम वो जर्नी करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर.
टिल देन आई होप ये जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स है ना आपको जानने, ईयर याद रखने, साइंटिस्ट के नाम याद रखने। इस चैप्टर में बहुत सारे साइंटिस्ट के नाम है, लेकिन जब बहुत सारे नाम है ना, वो आपको 2-3 बार आप जब पढ़ोगे तो आपके माइंड में अपने आप आ जाएंगे कि कौन सी डिस्कवरी किसने की थी। इट्स नॉट डिफिकल्ट, डोंट वरी, यू जस्ट नीड टू प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप जानते हो, आप तो स्मार्ट हो, ठीक है ना। तो यू स्लोली नो अबाउट इट। In the next lecture we'll meet and we'll study about the details of a cell. Just right now I've just taught you about the discoveries which were done through the cell. क्योंकि ये अपना पहला लेक्चर है ना, तो अच्छा आपको पता तो चलना चाहिए कि जिस चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे वो कैसे डिस्कवर हुई थी, ठीक है। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। हम और सिंपल चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को सिंपल करते हुए पढ़ जाएंगे। बेसिकली एक सिंपल सब्जेक्ट है, relax and then we'll move forward, ठीक है। So I hope all of you have just noted down the points which I said. अब आप बड़ी क्लास में आ गए हो ना, तो आपको 9th is the basic foundation of your career, right? आपको अपना करियर बनाने के लिए 9th क्लास से बिल्कुल 8 तक आपने जो भी मस्ती करनी थी करनी। ऐसा नहीं है कि 9th में नहीं करनी, लेकिन अपनी स्टडीज को भी सीरियसली लेना है, ठीक है। जो भी डाउट आए आप मेरे को पूछ सकते हैं। हम अगले लेक्चर में मिलेंगे, डिटेलिंग पढ़ेंगे और यू विल सी द फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ द सेल। ओके, सो टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड कीप स्टडीइंग स्टूडेंट्स। थैंक यू।